Hi everyone. Hi Hi Amrita, sir. How are you? all good, all good. How are you? I'm also doing well. I Cool, cool. started just a few minutes early so that I can share the link to everyone. Okay. Cool, 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 cool. Great. How are things at your end? All good. Like, Yeah, hi Nehal. Huh. So let's wait for some time before people join. yeah, sure. So is there any effect of the cyclone there, or like is No, everything is fine? no, No. no, not at all. Great. Yeah, so like it's raining since morning. Yeah, I have checked out a few stories of, from there, and like Anchal was sharing stories about her Right. side, and yeah, I, Yeah. Like it might be like so many kilometers away from here, but still it is impacting so much. Like yeah. even if we are so far away from the actual center. Yeah, so just believe what's going on there, Right. where the actual point is. So, Yeah. Um, like seeing your profile, we not only have questions for meme marketing, we also have a few questions for Quora marketing. People are so enthusiastic to hear uh, from you. yeah, Quora marketing, personal branding, anything that can come up. Yeah. No. But the biggest thing that I personally think I face is कि people don't believe कि यार ये content writer है by having a look at my profile. Oh my God, why? ऐसा क्यों? I don't know. I really don't know. Like, I have get in touch with a few consultation calls, and there, yeah, people came and told me कि यार you are into meme marketing thing. They never know कि यार जो मेरा first preference work है, that is Hmm. content writing, then into the meme Right. marketing. But चलो कोई नहीं. Hmm. Let's just how do I rename this room maybe? मुझे भी नहीं I आता think वो. that would have been helpful. Uh, Recently I was I have gone live and I thought कि यार मैं ना इस रूम का नाम रखूंगा How you doing, but I was unable to do that. Oh my God. You're But I also a was big unable. Joey fan. I can see that. Yeah. Okay, I think we can start. Actually, you can start, like telling everybody about yourself. How did you start your journey into maybe start from content writing and then maybe we can move to meme marketing. Yeah, I'm a freelance content writer and marketer with 4 years of work experience. And I actually started in my first semester of college. There I searched for on Google. The summer holidays were going on, and I thought, yeah, let's do something that will help me gain some pocket money or something like that. है So Hmm. I searched on Google, कि यार, let's find something with the help of which I can earn some money and all. And then I got a list of 30 different things that I can do online to earn money. And Wow. from all those 30 different things, I picked up this blogging. कि यार, this is something that I can do. I think I can do it. And after within the next 15 minutes now, I created my free website on Blogspot and posted my first blog over there, and it got like great response from I was able to get 15 views in the first day. Matlab within 24 hours I was able to get 15 views, and the biggest thing that hit me was
कि one person was from India, that was my brother. I know. मतलब I checked the analytics, and one person was from India, and that was my brother, and other 14 people were from the US, and I thought, कि यार, Wow. this is something amazing. I am going to do it. From there, What actually, was it it started. about? It was about blogging itself, like SEO and stuff. Okay. Ki what's SEO, such things. Yeah. Okay, great, great. And like what after that? What happened after that? See, for the first year, like when I started, for the first year, I was completely into blogging for my personal website only. I was Okay. not earning anything. The thing was ki I was not having the right information to how to get started, Hmm. as a content writer. I personally was unaware of ki content writing is also a work in the first year of when I started with the blogging thing. After that, I got to know like कि यार नहीं, content writing is something. One of my close friend told me कि content writing is something that you can try or you can do really well. So after that, I started with content writing thing, and for the next year, like moving to the second year, I started gaining clients through those Facebook groups. You must have heard about those content writing Facebook groups that pay 10 paisa per word, 20 paisa per word. So I've heard of it. yeah, I started from there only. I started at 10 paisa per word, then slowly moved to 20 paisa. तब अकल नहीं थी. But after that, after moving from Facebook, the content writing groups, I started with my personal branding stuff on LinkedIn, and then I actually came to know कि यार what value I am able to provide my clients, and how the things are. What should I pay? मतलब what should be my pay rate, and how should I work and all. So when I moved to LinkedIn, I actually moved to LinkedIn. At that time, I started connecting with content writers. I connected with Shreya. I connected with Komal. I connected with Jasmeet. Yeah, Jasmeet was the first person whom I, directly interacted with. Like I was a very introvert kind of person who will like no matter what happens, I'll never, message somebody to help me or get rid of this particular situation. I was that kind of person. But I Hmm. checked out कि यार जसमीत तो पंजाबी है, तो पंजाबी को मैसेज कर ही सकता है ना. So this was the only reason I messaged Jasmeet. So yeah, from there I started, and it's really going well now. After some time now, there was a particular situation. There was a situation where my client was not, actually accepting something. I don't know. Hmm. It was an idea, or either it was a pay rate thing. I guess it was a pay rate thing. I don't really remember now, but it was a pay rate thing. So he was not accepting my pay rates, and he was from a big company, like huge company. Hmm. So I was unable to directly tell him कि यार sir, this is wrong. You should not do this. So I created a meme. For that. कि यार my client is doing like that, and उस टाइम पे ना मिर्जापुर सीजन 2 आया था. तो हाँ. उस वहां से मैंने मीम्स बनाने स्टार्ट किया एंड पोस्टेड इट ऑन इंस्टाग्राम. और जिस दिन पोस्ट किया उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया. I was like, yeah, I haven't actually accepted it at all. From there, I actually started with the meme marketing thing, and when I started posting memes, such memes, then I connected with Pranjal Podur. I Hmm. guess you must be knowing, है ना? तो I Yeah. have checked out his content कि यार मतलब कितना अच्छा content बनाते हैं, and then I started creating out more such content कि हाँ यार ये content तो चल भी रहा है मेरा. मतलब मेरी Instagram की reach बढ़ रही है,
मेरे साथ लोग एक्चुअली यार द बिगेस्ट थिंग वाज कि पीपल वर एबल टू रिलेट टू माय कंटेंट. दैट वाज द हम्म. बिगेस्ट थिंग दैट हैपेंड. एंड आई थॉट कि यार नहीं यार अब तो यही करना है जो भी करना है. So from there I started posting on Instagram, and once I get a thought कि let's try it on LinkedIn. Let's try it on LinkedIn. LinkedIn पे ना तब कोई भी मीम्स पोस्ट नहीं कर रहा था at that particular time Right. when I started posting. Right. तो आई थॉट कि यार इंस्टाग्राम पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लिंक्डइन भी ना मेरा कुछ इतना खास चल नहीं रहा था, लाइक रीच वगैरह थी नहीं. तो मैंने सोचा हम्म. यार इसको लिंक्डइन पे ट्राई करके देखते हैं. तो लिंक्डइन पे ट्राई किया एंड इट वाज लाइक मतलब वो मेरी पहली पोस्ट थी जिसपे 12,000 व्यूज आए थे इन Oh अराउंड God. 4 आवर्स. एंड आई वाज लाइक कि यार ये क्या हो गया. उस द बिगेस्ट थिंग वाज उस टाइम पे ना, जिस टाइम पे मैंने वो मीम लिंक्डइन पे पोस्ट की ना, उस टाइम पे मेरे 500 कनेक्शंस भी नहीं थे. 500 कनेक्शंस भी नहीं थे ऑन लिंक्डइन. और जितने भी कनेक्शंस थे 400 450 उनकी वजह से जो 12,500 की रीच चली गई ना उस पर्टिकुलर पोस्ट पे. दैट वाज द थिंग कि यार ये हो क्या गया. I get it. I get it. अभी recently I started like I posted on Instagram. नहीं, I posted on LinkedIn about वो कि freelancing में charges के लिए मतलब freelancing से 1 to 2 lakhs per year कमाया जा सकता है, per month कमाया जा या सकता है नहीं. या तो या उस या पे आई उस चेक पे आउट. काफी अच्छी रीच गई और उसके बाद फिर ऐसे LinkedIn connections की ऐसे लाइन लग जाती है फिर. लोग हाँ देखते हाँ. कोई एक अच्छा पोस्ट आता तो लोग कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज देते हैं. या या दैट इज द थिंग या दैट्स ग्रेट. So like you tried something way या out of LinkedIn's comfort zone, जो like professionalism वाला जो tag है उसको ऐसे boundaries तोड़ दे. मतलब तो काफी. वो चीज ना, वो पर्टिकुलर चीज मैं कभी नहीं छोड़ूंगा. लाइक वो उसको ना मैं क्वालिटी मानता हूँ अपनी खुद की, कि यार जो भी मन में आइडिया आ रहा है ना, जितना भी यूनिक है, किसी ने किया नहीं किया, मुझे मुझे फर्क नहीं पड़ता उस चीज से. अगर वो आइडिया मेरा है ना, मतलब यूनिक है, मेरे माइंड में खुद में आया, देन आई एम गोइंग टू डू इट फॉर श्योर. नो मैटर किस तरह का रिस्पॉन्स आए, मुझे नहीं पता. बुरा रिजल्ट भी आ सकता है, वो क्या पता वो पोस्ट चले हाँ. ही ना, क्या पता. अभी अभी मैंने रिसेंटली एक पंजाबी में रील की है. बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि यार पंजाबी में थोड़ी विटी रील बना के देखो, एंड आई ट्राइड इट आउट. और मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरे मेरे इंस्टाग्राम पे ना बहुत कम पंजाबी कनेक्टेड है, बहुत कम. लाइक मोस्ट ऑफ माय फॉलोअर्स आर हिंदी स्पीकिंग वंस, उनको पंजाबी समझ ही हम्म. नहीं आती. तो आई वाज लाइक कि यार फिर ये चलेगा कैसे. बट वो मैंने बस ऐसे ही ट्राई कर दिया, एंड दैट गॉट अमेजिंग रिस्पॉन्स. अभी तक उस पे काफी बढ़िया व्यूज आ रहे हैं, तो चल रहा है. वाओ. या वाओ. नहीं, कुछ ना कुछ ऐसे न्यू एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, जो मन में एटलीस्ट ट्राई तो करना ही चाहिए. या सेम. अभी मतलब ये चीज मैंने एक्चुअली डिस्क्लोज नहीं की, बट आई हैव स्टार्टेड वर्किंग विद एड पैरोडी बिकॉज ऑफ दैट थिंग. मतलब वो मीम वाओ. मार्केटिंग से, मतलब ऐसी कोई रैंडम एक आइडिया आया मेरे माइंड में कि यार लेट्स ट्राई दिस आउट, एंड this took me to ad parody, like ad parody and one more company, that's Wooba Looba Dub Dub. That's a meme marketing company. These two companies are sort Right. of, yeah. So मतलब these were the dream companies I wanted to work with, कि हाँ यार मतलब और कोई कंपनी के साथ करूं या ना करूं, इनके साथ तो एक बार काम करना है. तो दैट्स मतलब वो पॉसिबल हो गया. वाओ. काफी ऐसे लाइक काफी इंस्पायरिंग जर्नी है, लाइक फ्रॉम एन इंट्रोवर्ट टू अ मीम मार्केटर वर्किंग विद टू ऑफ योर ड्रीम कंपनीज, तो काफी ड्रीम बड़ी बात है. लिटरली या. Great, that's awesome. So like, so how would you differentiate meme marketing from मतलब अलग-अलग social media platforms पे? So for example, if a meme works on Instagram, जरूरी है that it will work on LinkedIn or it will not work on LinkedIn?
नहीं। वैसा, या अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग अलग टाइप के मीम्स सूटेबल हैं, वैसा कुछ होता है क्या? सी, अगर आप मेरा कंटेंट देख रहे हो ना, तो द काइंड ऑफ कंटेंट दैट आई एम पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम, द सेम कंटेंट इज गोइंग ऑन लिंक्डइन। वो वो थोड़ा टाइम कंस्ट्रेन है मेरे पास एक्चुअली, थोड़ा क्लाइंट्स का काम होता है एंड दैट थिंग, उसकी वजह से मैं डिफरेंट कंटेंट बना नहीं पाता। अदरवाइज मैं बना दूं। बट हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि एक एक मीम जो है वो इंस्टाग्राम पे चल रही है एंड लिंक्डइन पे नहीं चलेगी। दैट इज नॉट अ केस एट ऑल। इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन ना मीम्स, so there was this uncle who came to me in the comment section and told me कि what are you doing? These memes are unprofessional things. Like हम्म। don't make LinkedIn Facebook. तो मुझे मुझे बहुत मतलब बीइंग अ पंजाबी मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा कि यार ये है कौन। तो मैंने उनकी ना प्रोफाइल चेक की। मैंने उनकी प्रोफाइल चेक की और मैंने ना उनका कंटेंट चेक किया कि यार क्या एक्टिविटी है इस बंदे की। मैं देखूं तो सही, मेरे कंटेंट को ऐसा बोल रहा है, मतलब क्या एक्टिविटी है। आई चेक्ड आउट हिज एक्टिविटी। तो वो पता क्या हम्म। कर रहे थे वो ना, मतलब जो कॉपीड कंटेंट नहीं होता कि फेसबुक हाँ। से कहीं भी पिक कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो वो सब कर रहे थे राइट। वो। तो आई रिप्लाइड टू देम कि यार जो आप कॉपीड कंटेंट वहां से पिक करके यहाँ पे पेस्ट कर रहे हो, उसकी वजह से लिंक्डइन फेसबुक नहीं बनेगा, बट मेरा जो यूनिक कंटेंट है जो मैं अपने माइंड से बना रहा हूँ उसकी वजह से लिंक्डइन फेसबुक जरूर बनेगा। उसके बाद फिर उनका रिप्लाई नहीं आया। फिर उसके बाद मतलब आते हैं, आज भी रिप्लाईज आते हैं ऐसे कि यार व्हाई आर यू डूइंग दिस मीम्स काइंड ऑफ थिंग ओवर हियर। बट अब मैं इतना देखता नहीं क्योंकि आजकल कमेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं। यू कैन गूगल, हाउ टू हैंडल फेम, ऐसा। स्टॉक्स। ग्रेट। लाइक आजकल काफी सारे ऐसे चैलेंजेस भी स्टार्ट हो गए हैं, लाइक मीम चैलेंज, 30 डे मीम चैलेंज या 15 डे मीम चैलेंज हाँ वगैरह। तो हाँ, लाइक इट इज गेटिंग पॉपुलर डे बाय डे। दैट इज अ थिंग यार। बट मतलब मैं ऐसा बंदा हूँ, मतलब मेरा मेरा अगर आप कैनवा चेक करोगे ना, कैनवा अगर मैं आपको दिखाऊं, ये पीछे ही पड़ा है, बट अगर मैं कैनवा आपको दिखाऊं ना उसमें मीम्स बड़े भरे पड़े हैं। मतलब अगर मैं अभी मीम्स बनाना बंद कर दूं ना अभी, तो आई हैव द मीम कंटेंट की जो डेली बेसिस पे एक एक पीस ऑफ कंटेंट जा सकता है फॉर अ होल ईयर। इतना कंटेंट पड़ा है मतलब। वाओ। दैट इज जस्ट फॉर द मीम्स थिंग। मतलब वो भी ऐसा नहीं कि मैं बस बनाए जा रहा हूँ बनाए जा रहा हूँ बनाए जा रहा हूँ। दैट इज समथिंग दैट इज रिलेटेबल। मतलब वो हम जो फ्रीलांसर्स है ना, कंटेंट राइटर्स हैं, डिजिटल मार्केटर्स हैं, वी वुड बी एबल टू एक्चुअली रिलेट टू दैट थिंग। वो मैं अभी डाल इसलिए नहीं रहा क्योंकि द थिंग इज कि आई हैव हर्ड अ नंबर ऑफ पीपल आउट देयर हु आर सेइंग कि यार मतलब इनिशियली तो व्हेन दे केम टू ऑन फेस टू फेस, जब किसी के साथ बात हो तो एट दैट टाइम दे बी लाइक कि यार नहीं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, नहीं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। But the thing that when they discuss the things with someone else and they be like कि यार ये कितना अनप्रोफेशनल है, ये क्या मीम्स ही पोस्ट करी जा रहा है, इंफॉर्मेटिव कंटेंट चाहिए क्लाइंट्स ढूंढने के लिए। बट द थिंग इज कि मुझे सबसे ज्यादा क्लाइंट्स मेरे मीम कंटेंट से ही आते हैं। और वो मीम मार्केटिंग के लिए नहीं आते सिर्फ और सिर्फ, वो कंटेंट राइटिंग के लिए भी आते हैं। मतलब द काइंड ऑफ कंटेंट दैट यू पोस्ट ऑन लिंक्डइन इज कि यार उस पर्टिकुलर कंटेंट से तो आप अपने ऑडियंस, जो टारगेट ऑडियंस है उसके पास पहुंच सकते हो क्योंकि उसके पास मतलब मीम्स में इतनी रीच है, आरओआई उनकी काफी अच्छी है। तो मतलब मीम्स आपको उस पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। दैट इज नॉट द केस कि यार अगर आपने मीम क्रिएट किया और एक क्लाइंट आपको रीच आउट कर रहा है बाय सीइंग योर मीम, तो वो सिर्फ और हम्म। सिर्फ मीम मार्केटिंग के लिए ही आएगा। दैट इज नॉट द केस। मतलब लोग राइट। आते हैं, दे रिलेट टू माई मीम्स एंड दे केम टू नो कि यार हाँ ये कंटेंट राइटर है, कंटेंट क्रिएटर है, एंड दे आस्क फॉर माय कंटेंट राइटिंग सर्विसेज और सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यार अगर आपने मीम पोस्ट किया है तो आपको मीम मार्केटिंग के रिगार्डिंग ही क्लाइंट्स मिलेंगे, या फिर क्लाइंट्स मिलेंगे ही नहीं।
So what I think is कि अगर कोई आपके मीम्स देखता है और उनसे रिलेट कर पाता है तो इट्स लाइक आपका कंटेंट उनके इमोशंस लाइक इन इमोशंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो देन व्हेन दे चेक आउट योर प्रोफाइल इट्स लाइक दे कैन नॉट ओनली रिलेट टू योर कंटेंट, दे कैन रिलेट टू यू, तो इसलिए वो आपको रीच आउट करते हैं. या तो आई थिंक मेन क्रक्स वहीं पे ही है दैट लाइक वी नीड टू रीच आउट, लाइक वी नीड टू इन्फ्लुएंस पीपल्स इमोशंस. या दैट इज द थिंग. बट अभी मैंने थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया है कि मैंने कहा यार ऐसा हो कि ये भूल ही जाए कि ये कंटेंट राइटर भी है. तो मैं बस अभी 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 तो ज्यादातर इंफॉर्मेटिव कंटेंट ही आ रहा है. अभी मैंने मतलब इंस्टाग्राम पे तो स्पेसिफिकली आई गेस मतलब कल ही एक मीम पोस्ट किया है मैंने, उससे पहले तो कुछ नहीं ऐसा किया. तो लाइक मीम मार्केटिंग आपके अकॉर्डिंग अभी सिर्फ ऐसे सोशल मीडिया तक लिमिटेड है या सोशल मीडिया के बाहर भी मीम मार्केटिंग का कोई यूज केस है? मतलब जैसे कभी ईमेल पे मीम भी सेंड कर दिया या किसी और लाइक. हाँ, द थिंग इज कि मतलब एक रिसर्च हुई है, एक प्रॉपर रिसर्च हुई है इस चीज के बारे में. मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा. एक प्रॉपर रिसर्च हुई है इस बारे में कि वो कह रहे हैं कि अगर मतलब अब कभी कभी हम एक क्लाइंट को मेल भेजते हैं एंड उसका कभी रिप्लाई नहीं आता. लेट्स से कि मैं एक 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 क्लाइंट को पिच कर रहा हूँ और उसको मैंने मेल भेजी, मतलब अपनी सारी सर्विसेज ऑफर वगैरह जो भी हैं सब मैंने उसको लिख के भेजा एंड उसका कभी रिप्लाई नहीं आया. एक रिसर्च हुई है और उसमें कह रहे हैं कि अगर आप वो जो सेकंड मेल जो फॉलो अप मेल होती है उसमें अगर आप मीम ऐड कर दोगे या फिर एक विटी जीआईएफ ऐड कर दोगे ना उसमें, तो यू वुड गेट बेटर रिजल्ट्स. मतलब क्लाइंट आपकी ईमेल जरूर खोलेगा और उस चीज को रिप्लाई करेगा. मतलब ये एक एक्चुअली रिसर्च हुई है, मतलब मैंने पढ़ी है कहीं पे. और वो कह रहे हैं कि हाँ वी डिड अ रिसर्च विद अराउंड 15 पीपल और उनको हमने ऐसे ही रैंडमली कहा कि स्टार्ट पिचिंग आउट लाइक क्लाइंट्स, और उनमें से एक को उन्होंने ये अथॉरिटी दी थी कि यू जस्ट नीड टू इन द फॉलो अप ईमेल यू नीड टू शेयर अ मीम और जीआईएफ, और उस बंदे की डील्स क्रैक हो रही हैं. मतलब उस बंदे को एक्चुअली काफी बढ़िया रिस्पॉन्स आया उस चीज से. तो वी कैन डू इट, मतलब हम कहीं भी यूज कर सकते हैं. इवन आई एम सीइंग कि यार मेन लाइन मीडिया में यूज हो रहा है ये. मेन लाइन मीडिया इज द वो जो हम बिल बोर्ड्स नहीं देखते, द एड्स बैनर्स है ना, वो सारी चीजें उन चीजों में यूज हो रहा है मीम मार्केटिंग. अगर आप कभी मैकडोनल्ड्स और केएफसी की पोस्ट वगैरह देखोगे ना बिलबोर्ड्स में जो होती हैं स्पेसिफिकली, देयर दे यूज दिस मीम मार्केटिंग थिंग ओनली. मतलब वो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, वो एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के कंपनी के बारे में या कुछ ऐसा कुछ उनका चलता रहता है मीम मार्केटिंग के थ्रू. तो मीम मार्केटिंग इज बीइंग यूज्ड एवरीवेयर, लाइक कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है. इनफैक्ट एक लाइक रीसेंट एडवर्टाइजमेंट भी था दैट एक 5 स्टार का था एंड एक किटकैट का था दैट लाइक यू वी टेक अ ब्रेक फ्रॉम लाइक विद किटकैट करके वो एक एडवर्टाइजमेंट था एक बिलबोर्ड पे, एंड उसके जस्ट एडजेसेंट बिलबोर्ड पे 5 स्टार का था हैव 5 स्टार एंड डू नथिंग करके. हाँ हाँ, ये चीज वो भी करते हैं. देयर वर टू कंपनीज, हाँ एक थी ऑडी और बीएमडब्ल्यू, ये दोनों भी करते हैं. मतलब उन्होंने ये मीम मार्केटिंग का यूज इतने अच्छी तरह से किया ना. एक ना प्रॉपर हाईवे था. फर्स्ट जो बिलबोर्ड आया वो था ऑडी का, और उसने अपनी एड दी एक मीम मार्केटिंग के थ्रू, एक एड दी अपनी नई जो भी लेटेस्ट कार उनकी आ रही थी उसकी एड दी, और नीचे उन्होंने बीएमडब्ल्यू को टैग कर दिया कि नाउ इट्स योर टर्न. तो साइड में बीएमडब्ल्यू ने अपना बैनर लगा दिया एंड दे वर लाइक कन्वर्सेटिंग विद दीज थिंग्स. तुम लाइक एक दूसरे को ऐसे लाइक डायरेक्ट टारगेट भी करते ही है लाइक थ्रू दीज काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग टारगेट्स. तो लाइक कैन मीम्स बी यूज्ड इन पेड कैंपेन्स? मतलब आपने कहीं ऐसा एग्जांपल देखा है कि पेड कैंपेन्स में मीम्स यूज हो रहे हो? क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, हम कर रहे हैं. तो लाइक आर देयर एनी एग्जांपल्स कि आप सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी में या फिर आप पेड कैंपेन्स में किस तरह से मीम्स यूज कर सकते हैं?
सी अभी मैंने बताया ना आपको कि उबा लुबा डुबडुब और एड पैरडी के साथ काम कर रहा हूँ, तो दे आर डूइंग दिस थिंग। मतलब वो बहुत सारे जितने भी ब्रांड्स उनके अंडर है ना, तो दे आर डूइंग दिस थिंग विद अ लॉट ऑफ ब्रांड्स आउट देयर फॉर देयर सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज। बट द थिंग इज, वन थिंग दे ऑलवेज प्रेफर इज कि यार वील नॉट गो फॉर द एड्स थिंग, we'll directly Okay. fetch customers through the organic ways, क्योंकि मीम्स का आरओआई इतना अच्छा है। लाइक इफ यू हैव डन द कीवर्ड रिसर्च, हैशटैग रिसर्च प्रॉपरली ना, you don't need any sort of help from those ads or something like that. उनकी उनकी रीच ऑलरेडी बहुत ज्यादा है अभी, तो मतलब बहुत ज्यादा है। आगे जाके मुझे वैसे सच कोई आइडिया नहीं है कि आगे जाके मीम्स बननी बंद हो जाएंगी या फिर मीम्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। बट द थिंग इज कि अभी बहुत जो पीक पे है ना, दैट इज द थिंग। एक्चुअली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि लाइक आपके अकॉर्डिंग मीम मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है? मतलब ऐसा एक फैड टाइप का चल रहा है या ये लाइक लॉन्ग लास्टिंग ट्रेंड है? सी लॉन्ग लास्टिंग है। द थिंग इज वो इस चीज के लिए, क्योंकि यार इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज वो स्टार्ट हो रही हैं फॉर द मीम मार्केटिंग थिंग, एंड दे आर नॉट ऑफरिंग द कंटेंट राइटिंग सर्विसेज और what say digital marketing services. They are just offering meme marketing services. मतलब एक प्रॉपर स्टार्टअप है जो सभी चीजें ऑपरेट कर रहा है, जो कैश फ्लोज ला रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ मीम मार्केटिंग थिंग। तो मीम मार्केटिंग इज अ लॉन्ग टर्म थिंग, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी है कल नहीं। राइट। Even I have started my own agency now, so there I have also added the meme marketing services, and I have got amazing response for that. वाओ, वाओ, great, great. That's great to know. So, like coming to as a main theme now, so what are the ways that one can earn from meme marketing? Like as a uh, freelancer or as a, small business? both ways are possible, both ways are possible. You just need to see, one thing is कि let's say you are pitching a content writing, you are a content writer है ना, so let's say you are pitching a content writing client। तो उस पर्टिकुलर मतलब आपको पता है कि इसको कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज चाहिए, मतलब इसको अपना बिजनेस बढ़ाना है, ही वांट्स टू ग्रो हर हर और हिज बिजनेस, और उसके लिए उसको कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज चाहिए। तो व्हेन यू रीच आउट टू दैट क्लाइंट, तो आप उस क्लाइंट को अच्छी तरह से समझाओगे ना कि दीज आर माय सर्विसेज, दीज आर माय प्रीवियस क्लाइंट्स रिजल्ट्स। चलो अगर प्रीवियस क्लाइंट रिजल्ट्स नहीं भी हैं तो हाँ यार, दीज आर माय सर्विसेज, ये क्वालिटी ऑफर कर रही हूँ, एंड इफ यू ऑप्ट फॉर माय सर्विसेज देन आई कैन टेक योर बिजनेस फ्रॉम देयर टू देयर, है ना। ये चीज आप समझाओगे ना, तो द सेम इज विद मीम मार्केटिंग थिंग। पीपल आर सेइंग कि यार वी आर अनेबल टू गेट लीड्स फॉर मीम मार्केटिंग थिंग। आई एम गेटिंग लीड्स फॉर मीम मार्केटिंग थिंग एटलीस्ट, मतलब एक या दो लीड्स तो ऑन अ डेली बेसिस आती ही हैं, मतलब एक या दो क्वारीज ऑन अ डेली बेसिस कि वी वांट टू इन्वेस्ट इन मीम मार्केटिंग, व्हाट आर योर स्ट्रेटजीज और समथिंग लाइक दैट। और फिर उसके बाद मेरे पे है कि यार इफ दे आर गेटिंग इनटू द राइट बजट विद मी और नॉट, मतलब अगर वो सही बजट पे हैं तो आई विल गो फॉर देम, एंड अगर नहीं है तो नहीं, कुछ नहीं कर सकते ना उस चीज के बारे में। तो ये है, मतलब यू जस्ट नीड टू पिक अप, मतलब आपको यार एक पिचिंग स्ट्रेटजी बनानी है कि यार दिस इज वन बिजनेस जो अपना जो ग्रो करना चाहता है, बट वो अभी स्टक है। मतलब भले हम्म। ही वो कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटजी की वजह से हो या फिर कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी की वजह से हो, किसी भी चीज की वजह से हो, and with my memes and with my meme marketing services I can help them grow। मतलब आपको whenever you are reaching to a client ना, you just need to be clear about the things। You just need to, firstly you need to be clear about the services that you are offering, secondly you need to clear about the deliverables and the results you can offer to that person, you can offer to that business।
So when you come up with a clear perspective ना कि मैं ये सर्विसेज आपको ऑफर करूंगा एंड ये चीज आपको यहाँ से यहाँ ले जाएगी, एट दैट टाइम वो क्लाइंट ऑलरेडी कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यार बिजनेस, हर किसी को अपना बिजनेस ग्रो करना है ना, एंड मीम मार्केटिंग इज नॉट अभी 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 के टाइम पे बहुत कम लोग होंगे, बहुत कम लोग होंगे जो सोच रहे हैं कि मीम्स आर अनप्रोफेशनल। हर कोई मीम्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, हर कोई, मतलब कोई भी बिजनेस ले लो यार, जोमेटो ले लो, जोमेटो अपनी मार्केटिंग कर ही मीम्स से रहा है। जोमेटो और कुछ यूज ही नहीं करता, जोमेटो और कुछ यूज ही नहीं करता। हम्म। ग्रेट ग्रेट। तो बट स्टिल लाइक वो तो एक्सपीरियंस लोग की बात होगी कि यू कैन टेक योर बिजनेस, दे कैन टेक योर बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, क्योंकि उन्होंने पास्ट में भी ऐसा किया हुआ है। बट एज अ बिगिनर लाइक वो कॉन्फिडेंस तो होता नहीं है, बिकॉज यू हैव नेवर ट्राइड इट। तो एज अ हाँ, बिगिनर हाउ टू आस्क, रीच आउट टू क्लाइंट्स की आई विल हेल्प यू विद अ मीम मार्केटिंग सर्विस। there's a small thing that I personally use, मतलब जो स्टार्टिंग में यूज की थी, अभी नहीं मैं यूज करता क्योंकि अभी जरूरत नहीं है। तो हाँ, दैट इज अ थिंग। तो इनिशियली व्हेन आई यूज्ड टू पिच क्लाइंट्स फॉर मीम मार्केटिंग ना, तो एट दैट टाइम व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि एक बिजनेस मैंने पिक कर लिया कि हाँ यार दिस इज अ ग्रेट बिजनेस, और ये मेरी मीम मार्केटिंग सर्विसेज में अगर मैं इनको राइट स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करता हूँ और राइट गोल्स इनके सेट करके देता हूँ कि हाँ यार यू वुड बी एबल टू गेट दीज रिजल्ट्स, तो ये मेरी मीम मार्केटिंग सर्विसेज में जरूर इन्वेस्ट करेंगे नो मैटर व्हाट। तो व्हाट आई डू इज आई क्रिएट टू पीसेज ऑफ मीम, टू मीम कंटेंट पीसेज। वो मैं उनको मेल पे भेज देता हूँ या फिर अपने इंस्टाग्राम हैंडल से पोस्ट कर देता हूँ उनको टैग करके। मतलब अगर आप तो अभी कनेक्ट हुए हैं ना मेरे साथ, आप अभी कनेक्ट हुए हैं, तो अगर आप अगर कोई मेरे साथ कनेक्टेड था फ्रॉम, जब मेरे 400 फॉलोअर्स थे ना, जब मेरे 400 फॉलोअर्स थे ना, उस टाइम पे अगर कोई कनेक्टेड था ना, तो उन्होंने एक्चुअली ये चीज देखी होगी कि मैं क्या करता था। मैं ब्रांड्स के लिए ना, जोमेटो के लिए या फिर कोटक के लिए या आई फिर थिंक और आई हैव सीन इट शायद, बिकॉज लाइक लिंक्डइन पे तो लाइक काफी टाइम, सॉरी सॉरी, लिंक्डइन पे तो आई थिंक हम लोग काफी टाइम से कनेक्टेड है, मतलब कभी बात नहीं हुई, बट लिंक्डइन लिंक्डइन यार, पे काफी एक्चुअली टाइम से कनेक्टेड है। वो चीज है, वो चीजें मैं लिंक्डइन पे नहीं पोस्ट करता था। आई नो अबाउट दैट थिंग क्योंकि वो अच्छा। ब्रांड्स इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव हैं, वो लिंक्डइन पे एक्टिव ओके। नहीं है। तो दैट्स व्हाई आई यूज टू पोस्ट इट ओवर इंस्टाग्राम ओनली। तो मैं क्या करता था, आई डायरेक्टली यूज टू क्रिएट टू पीसेज ऑफ मीम कंटेंट फॉर देम एंड posted on from my, either from my profile और डायरेक्टली इन द स्टोरी, वो चीज कर देता था एंड आई यूज टू टैग देम। और मेरा मेरा उस चीज से लेके ना सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट होता था कि यार ये ब्रांड का जो भी डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर वाला बंदा है ना, ये ब्रांड बस देख ले मेरी मीम, ये ब्रांड बस देख ले मेरी मीम, और ये ब्रांड बस मतलब उस चीज पे रिएक्शन दे दे अपना, मतलब अपना रिएक्शन दे दे। तो दैट इज द बिगेस्ट थिंग दैट, मतलब जो मेरे साथ हुई थी, द फर्स्ट ब्रांड दैट आई यूज्ड इन दैट वे, मतलब जिसके लिए मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई थी, दैट वाज जोमेटो। जोमेटो था। जोमेटो ने ना मतलब वो वाली रील तो एक्चुअली मेरे मतलब अभी भी इंस्टाग्राम पे पड़ी है। जो सबसे पहली रील है ना मेरी, जो सबसे पहली रील है वो वही वाली है, जोमेटो वाली है। अगर आप देखोगे ना तो उसमें मैंने जोमेटो के लिए एक रील बनाई थी, विटी कंटेंट बनाया था। मतलब अभी मैं समझा नहीं सकता कि मैंने क्या बनाया था, बट या वो विटी कंटेंट था, और वो अभी भी पड़ा है, मतलब आप चेकआउट कर सकते हो उस चीज को। तो वो मैंने शेयर किया और जोमेटो को टैग किया, और जोमेटो का रिएक्शन आया उस पे। वो भी मतलब ऐसा कोई रिएक्शन नहीं कि उन्होंने जस्ट डबल क्लिक करके लाइक ही कर दिया पोस्ट, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं आया था उनका। प्रॉपर एक लाफिंग वाला रिएक्शन आया था, एंड दैट वाज द बिगेस्ट थिंग दैट कुड हैपन विद मी। और जब उनका रिएक्शन आया था ना, तो वो वाली पोस्ट भी वैसे मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर कर दी थी।
उसके बाद फिर ये सारी चीजें नॉर्मल होती गई तो आई थॉट कि यार अभी क्या है यार, अभी सब कुछ थोड़ा शेयर करूंगा हम्म। तो हाँ, फर्स्ट ब्रांड दैट आई ट्राइड दैट स्ट्रेटजी ऑन वाज जोमेटो, और उनका रिजल्ट आया था, दैट वाज अमेजिंग। बहुत लाइक, जैसा कि लाइक मैं पहले भी बोला था ना हमने कि जैसा जो मन करता है वो कर देना चाहिए, सरप्राइजिंग और रिजल्ट्स कभी मैं भी मिल यार, सकते हैं। मैं आपको बता नहीं सकता उस टाइम पे आई हैड कि यार नहीं यार, मैंने आज तक ना रील्स ट्राई ही नहीं की। मतलब जैसे मैं आपको ऑलरेडी कह रहा हूँ कि वो मेरी पहली रील थी, तो मैंने रील्स कभी ट्राई ही नहीं की। तो यार हाउ दिस थिंग विल गो विद इट कि यार जोमेटो, चलो जोमेटो मीम मार्केटिंग में इन्वेस्ट करता है, बट जोमेटो एक काफी बड़ा ब्रांड है, और अगर उनके लिए मैं कोई कंटेंट बना रहा हूँ तो दैट शुड लुक क्लीन और थोड़ा प्रोफेशनल लगना चाहिए। तो देन ओनली दे इधर दे रिएक्ट और चेक आउट माई पोस्ट। बट ऐसा कुछ नहीं था यार, मतलब मैंने इतनी कोई क्लीन पोस्ट नहीं बनाई, इतनी कोई क्लीन, मैं मतलब बिल्कुल ही एक बिगिनर था ऑन रील्स वाली थिंग पे, अभी भी हूँ वैसे तो। मैं मानता हूँ कि मुझे रील्स नहीं बनानी आती, मुझे मैं मतलब कैमरे के आगे बोल जरूर सकता हूँ, बट आई डोंट रियली नो कि यार एक वो जो प्रोफेशनल वाली मीम होती है ना, वो नहीं मुझे बनानी आती, अभी भी नहीं आती, अभी भी नहीं आती। बट हाँ, उस टाइम पे मैंने ट्राई किया, और उस चीज की वजह से जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ ना कि यार जोमेटो के लिए मैंने एक यूनिक आइडिया बनाया विटी कंटेंट का, और उन्होंने रिएक्ट किया, मतलब उनको पसंद आ रहा है, तो जो बाकी ब्रांड्स है उनको भी तो पसंद आएगा। तो दैट वाज द थिंग इन माय हम्म। माइंड कि यार उनको पसंद आ गया, तो इन इनसे जो थोड़े छोटे ब्रांड हैं उनको अगर मैं पिच करूं तो उनको तो पसंद आएगा ही आएगा। तो आई स्टार्टेड पिचिंग दो स्मॉल बिजनेसेस एट दैट टाइम मीम मार्केटिंग के लिए। अभी तो अभी जरूरत नहीं पड़ती यार, अभी अभी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये एड पैरेडी वाला, ये इन्होंने हम्म। ये दे डायरेक्टली रीच आउट टू मी। तो मतलब मैं हम्म। नहीं उनके पास ऐसा गया कि यार आई वुड लव टू वर्क विद यू और समथिंग लाइक दैट। मतलब उसके बाद जब ये जोमेटो वाला हुआ, तो उसके बाद मैंने एक या दो मीम्स बनाई थी, और वो मीम्स ना एड पैरेडी के सीईओ के पास चली गई, मुझे नहीं पता कहाँ से। तो वो ओ गॉड। एड पैरेडी का सीईओ, ही इज एक्चुअली फॉलोइंग मी। मतलब अगर आप, जयदेव है उसका, उनका नाम जयदेव है, एंड ही इज एक्चुअली फॉलोइंग मी, एंड उनका जो को फाउंडर है वो है अरिहंत, ही इज ऑल्सो फॉलोइंग मी। तो मतलब दैट वाज अ बिग थिंग फॉर मी कि यार यार इतने बड़े लोग, मतलब इन द मीम मार्केटिंग एस्पेक्ट दे आर फॉलोइंग मी। मतलब वो हर किसी को तो नहीं फॉलो करते, तो दे आर ट्रू। फॉलोइंग मी। तो दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी कि यार हाँ, बहुत अच्छी बात है वाओ। लाइक कंसिस्टेंटली, लाइक वन जस्ट हैज टू स्टार्ट और फिर कंसिस्टेंटली वर्क करते रहना है अपनी स्किल्स पे, या या और अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने से यू विल डेफिनेटली अट्रैक्ट क्लाइंट्स। या द थिंग इज कि यार मतलब सी, यू कैन, योर आइडिया कैन ईदर वर्क और नॉट। इससे ज्यादा क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा क्या हो जाएगा, नहीं राइट। होगा। आपका इंस्टाग्राम बंद नहीं होगा, आपका लिंक्डइन बंद नहीं होगा, आपका कोई भी अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा, या फिर कोई आपको कुछ कहेगा नहीं। आई डोंट थिंक सो कि कोई, मतलब अगर मुझे इनिशियली काफी कुछ फेस करना पड़ा कि यार व्हाई आर यू क्रिएटिंग मीम्स। मतलब मीम्स तो बहुत अनप्रोफेशनल है। मतलब जो मेरे फ्रेंड सर्कल में भी थे ना, they also started saying this thing कि यार मीम्स क्यों बना रहा है, मीम्स आर नॉट द थिंग, मीम्स आर नॉट द थिंग, इंफॉर्मेटिव कंटेंट पोस्ट करो, इंफॉर्मेटिव कंटेंट पोस्ट करो। मैं क्या, मैं तो यही करना आई टोल्ड देम कि यार आई विल डू दिस ओनली, मतलब मेरा जो दिल करेगा वो मैं करूंगा, एंड दैट इज नाउ वर्किंग फॉर मी। तो दिस इज द ओनली थिंग कि यार जो भी आइडिया आपके माइंड में आ रहा है ना, हाँ, उसको एक स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, उसको एक प्रॉपरली उस चीज को लेके कम अप कैसे करना है, उस चीज को लेके आना कैसे है, उस चीज के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ, एक प्रॉपर टाइम फ्रेम बनाओ कि यार इस चीज के लिए ना
ये चीज मुझे करनी है और इस चीज की स्ट्रेटजी क्रिएट करने के लिए मुझे एक दिन का टाइम इसको देना ही देना है। एक दिन का टाइम दो हम्म उस चीज को, एक दिन का टाइम दो उस चीज को, बट एक दिन से ज्यादा मत दो फिर उसको। मतलब अगर आपने एक बार सोच लिया ना कि आई एम गोइंग टू गिव वन डे टू दिस थिंग यार, तो उसके बाद फिर मतलब अगर आप उसके बाद भी अगर सोचने को लगा दोगे ना टाइम कि नहीं यार एक दिन और दे देता हूँ, एक दिन और दे देता हूँ, फिर वो एक दिन ही रह जाता है कि यार एक दिन पोस्ट करेंगे। राइट, सो जस्ट लाइक स्टार्ट तो करना ही है, तो ज्यादा टाइम सोचने में वेस्ट नहीं करना है। या ग्रेट। तो लाइक मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे वन स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम मी मार्केटिंग ना, तो जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने के अलावा और क्या कर सकता है अभी फिलहाल, मतलब और क्या क्या स्कोप हो सकता है? सी यार, द थिंग इज कि अभी ना जैसे मैंने वो सोशल मीडिया मार्केटिंग वाली स्ट्रेटजीज बताई ना, तो देयर आर अ नंबर ऑफ कॉपीराइटिंग फर्म्स, कंटेंट क्रिएशन फर्म्स, जिनको ना जो यार देखो, whenever we create a meme, हम ना उसमें एक आधी ऐसी लाइन डाल देते हैं दैट इज जो रिलेटेबल होती है, जो ह्यूमरस होती है, और मतलब इस तरह की जो हम लाइंस डाल देते हैं ना, इधर इन हिंदी और इधर इन इंग्लिश और एनी एनी लैंग्वेज, इट्स नॉट स्पेसिफिक कि किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के साथ। तो वो जो चीजें हम बनाते हैं ना कि एक ह्यूमरस बड़ी लाइन जो इंफॉर्मेटिव भी है और एट द सेम टाइम वो ह्यूमरस भी है, तो जो हम्म डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज है ना नाउ डेज, दे आर लुकिंग फॉर सच काइंड ऑफ पीपल हु कैन कम अप विद एड आइडियाज, जो एड की एक एक लाइंस नहीं होती, जो कॉपीराइटिंग स्टफ, जो हम्म तरह की लाइंस क्रिएट पंच कर सकते। लाइन्स जो, वन हाँ लाइनर जो हाँ पंच लाइन्स हाँ, हैं, ऐसे। बस। तो दैट इज मतलब मैं उस चीज में भी वर्क कर रहा हूँ। एक मेन लाइन मीडिया कंपनी है, उसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो दे मतलब उनको मैं यही सर्विस ऑफर कर रहा हूँ। उनको मैं मीम्स नहीं बना के देता, उनको मैं ब्रांड्स के लिए वो जो विटी टैगलाइंस होती है ना वो बना के देता हूँ। विटी टैगलाइंस इसलिए क्योंकि विटी टैगलाइन को आप अगर पढ़ोगे ना, तो फर्स्टली वो बहुत अट्रैक्टिव होती हैं। मतलब अगर आप उनको हम्म पढ़ नहीं रहे ना, अगर आप ऐसी इधर उधर जा रहे हो और आपको एक ऐड दिख गई जिसपे विटी कुछ लिखा है, विटी कंटेंट है कुछ, तो आप उसको पढ़ोगे भी नहीं तब भी आपकी ना वो अट्रैक्शन खींच ही लेगा। तो वो चीज है। और जब उसको पढ़ते हैं तो हाँ चलो हंसी तो आती है, दैट वो ह्यूमरस कंटेंट है तो हंसी तो आएगी ना। तो उसके हम्म साथ साथ वो आप मतलब उस ब्रांड को प्रमोट भी कर रहे हो और एक इंफॉर्मेशन भी मिल रही है आपको उस चीज के रिगार्डिंग। तो दीज आर द काइंड ऑफ पर्सन लाइक ब्रांड्स आर लुकिंग फॉर। और मीम मार्केटिंग में स्ट्रैटेजीज कैसे बनानी है, एक सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है जो कंप्लीटली मीम्स के ऊपर होगी, तो वो सारी चीजें क्रिएट करना, प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना और ये सारी चीजें, मतलब बहुत काम है। मतलब मीम मीम मार्केटिंग को हम ऐसे ही दो वर्ड्स में कह देते हैं मीम मार्केटिंग, बट मीम मार्केटिंग काफी वास्ट है, काफी वास्ट अग्रीड। है। तो लाइक आपको लाइक फर्स्ट क्लाइंट कैसे मिला था मीम मार्केटिंग के लिए? व्हाट्स योर स्टोरी? फर्स्ट क्लाइंट, हाँ फर्स्ट क्लाइंट मुझे मिला था लिंक्डइन से। तो शी हैड अ लुक एट माय मीम कंटेंट, मतलब वो काफी टाइम से फॉलो कर रही थी मुझे ऑन हम्म ऑन ऑन लिंक्डइन। और जब भी मैं इंफॉर्मेटिव कंटेंट पोस्ट करता था ना, तब नहीं वो रिएक्ट करती थी मेरी, तब वो एंगेज नहीं होती थी मेरे कंटेंट के साथ। बट वेन एवर आई यूज टू क्रिएट दीज मीम काइंड ऑफ थिंग्स ना, तब वो एंगेज होती थी। तभी मेरे माइंड में थोड़ा सा आइडिया आ तो गया था कि हाँ यार ये मतलब सर्विसेज तो लेगी। तो हाँ, फर्स्ट क्लाइंट मुझे लिंक्डइन से ही मिला था। और दैट वाज फॉर फॉर एन ई कॉमर्स वेबसाइट। मतलब उन्होंने एक अपना ई कॉमर्स स्टार्टअप क्रिएट किया था जहाँ पे वो होम वेलनेस प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करना चाहते थे। तो फॉर दैट हम्म आई क्रिएट मीम्स फॉर देयर सोशल मीडिया हैंडल्स। अभी भी मतलब अभी भी चल रहा है वो चीज, तो हाँ। वाओ, ग्रेट ग्रेट, नाइस।
तो लाइक इफ समवन इज स्टार्टिंग देयर जर्नी इन मीम मार्केटिंग, तो सबसे पहली चीज आप क्या करना रेकमेंड करोगे, या आइडियाज कैसे आते हैं मीम मार्केटिंग के लिए, लाइक फॉर आइडियाज बिगिनर्स? ना, आइडियाज कंप्लीटली रैंडम होते हैं। मतलब अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे कितने आइडियाज आ गए हैं मीम्स के रिगार्डिंग। आपको इसीलिए लाइव आपको सेशंस करते हो आप, समझ में आ गया मुझे अब। आपको कुछ नहीं पता कि कल आप पे मीम बन जाए, मुझे नहीं पता। तो हाँ, मतलब यार, सी, एक ना थोड़ा ह्यूमरस नेचर वाला पर्सन है ना, दैट इज समथिंग हु वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यार, जब भी हम एक ह्यूमरस नेचर वाले पर्सन होते हैं ना, एट दैट टाइम मतलब सब कुछ नॉर्मल चल रहा होगा, हम काम कर रहे हैं या फिर कुछ कंटेंट देख रहे हैं, या फिर फोन पे कोई मैसेज आ गया, या फिर कुछ कुछ भी ऐसा हो गया हमारे सराउंडिंग में। तो एक नॉर्मल पर्सन को ना वो चीज बड़ी ही नॉर्मल लगेगी, हाँ यार ये तो रोज ही होता है, ये तो रोज ही होता है। बट जब आप एक ह्यूमरस पर्सन हो ना, तब वो छोटी सी चीज भी ना, मतलब पानी का गिलास गिर गया, तब वो छोटी सी चीज भी ना एक ह्यूमरस कंटेंट का फॉर्म कैसे ले लेती है, वो एक ह्यूमरस पर्सन ही समझ सकता है कि मतलब मैं एक्चुअली हूँ ह्यूमरस यार, मैं एक्चुअली हूँ ह्यूमरस। मेरा 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 जो घर घर का माहौल है ना, दैट इज फ्रॉम वेयर इट ऑल केम। मतलब जितने भी मेरे फैमिली मेंबर्स है ना, दे आर ह्यूमरस। लाइक मैं पंजाबी हूँ, तो पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो वो वहां क्या होता है, जब भी यार अगर आप कल को कुछ गलती करते हो, छोटे होते बच्चे होते, जब जब आप गलती करते हो, तब आपके पेरेंट्स आपको समझाएंगे ना कि यार नहीं, नहीं अमृता, ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। हाँ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। अगर हम कुछ गलती करते हैं ना, तो हमें हमारे पे टॉन्ट मारे जाते हैं। वो सबके घर पे होता है, ये चीज सबके घर पे होती ये है। नहीं किसी नहीं के वो घर पे प्यार से नहीं समझाते हैं। हमारे पंजाबी, मुझे मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि पंजाबी फैमिलीज में ये ज्यादा होता है। लाइक मगर मतलब यार, अगर एक छोटी से छोटी चीज भी है ना, उस चीज के रिगार्डिंग, उस चीज पर भी आपको टॉन्ट मारे जाएंगे। तो आई पर्सनली बिलीव कि ये जो ह्यूमरस नेचर है ना, ये यहाँ से आया है। मतलब और कोई यार पॉइंट नहीं है मेरे पास इस चीज के रिगार्डिंग कि मैं इतना ह्यूमरस क्यों हूँ, और या फिर मैं ये ह्यूमरस कंटेंट कैसे क्रिएट कर पाता हूँ, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। बट मुझे तो सिर्फ आपने और सिर्फ रिसेंटली हाँ, आपने रिसेंटली लिंक्डइन पे भी डाला था हाउ टू गेट मीम आइडियाज, और नहीं, आपने डाला था कि जसमीत ने डाला था, आई डोंट रिमेम्बर, ऑब्जर्व योर रिलेटिव्स। मीम आइडियाज। नहीं, हाउ टू गेट कंटेंट आइडियाज, तो आई थिंक ये जसमीत ने डाला था। कंटेंट आइडियाज वाला तो हाँ, माइट भी जसमीत ने डाला हो, बट हाँ, मैंने एक मीम मीम के बारे में एक ऐसा कुछ बनाया हुआ है ऑलरेडी लिंक्डइन। हाँ, ऐसा भी बना दे, क्योंकि मैंने पहले भी देखा है। तो हाँ, वही है कि अपने आसपास की, इनफैक्ट अभी विवेक ने भी कमेंट किया है कि आइडियाज कहाँ से आते हैं, जस्ट टू कीप योर आईज ओपन एंड या ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स। मतलब कौन सी चीज मैं कहाँ पे फिट कर दूंगा ना, मतलब ये कभी कभी मुझे खुद नहीं समझ आता है कि यार ये मैं कर कैसे देता हूँ। क्रिएटिव लोगों की यही निशानी होती है। मतलब यार, मतलब मैं, आपने अगर मेरे लाइव सेशंस देखे होंगे ना, तो मैं अपने वो दूसरे फोन में लगा होता हूँ, अपने दूसरे फोन में कुछ ना कुछ लिख रहा होता हूँ। तो हाँ, राइट। वो मैं वो मैं मीम मीम आइडियाज। आइडियाज ही लिख रहा होता हूँ। मतलब जब हम लोगों के साथ बात करते हैं, जब हम लोगों को ऑब्जर्व करते हैं ना, तो वहां से बहुत सारी चीजें आती हैं। लाइक वो क्या नाम है उसका, मोक्षा। मोक्षा हमारे साथ लाइव पे आती है, एंड शी ऑलवेज हैव दिस थिंग कि यार मैं आज नहाई नहीं। तो वो चीज मैं लिख लूंगा, और बाद में कहाँ पे यूज कर दूंगा मुझे कोई आइडिया नहीं। कुछ दिन पहले मैं मानवी के साथ, स्पंदन के साथ और आस्था के साथ
एक जूम कॉल पे था, तो मानवी मानवी को नींद आ रही थी, बट स्टिल शी वाज इन द जूम सेशन। तो वहां मुझे पता नहीं वो आइडिया कैसे आ गया, मैंने उस चीज का वीडियो बना लिया और एक एक गाने का हाँ, बैक तारे दे जमीन दिया। पर। तो वो चीज मतलब वो बहुत रैंडम चीज होती है, मतलब पता नहीं कहाँ से आ गई। वो बहुत फनी था, मैंने आपकी स्टोरी में देखा। एंड देन मानवी ने भी हाँ उसको रीशेयर किया था। हाँ, मानवी मुझे कभी नहीं माफ करेगी इस चीज के लिए, बट मैं क्या करूं। स्पंदन वाज लाइक, स्पंदन कह रहे हैं कमेंट में कि वो तो तगड़ा वाला मीम था। अभी इतना सारा कंटेंट पड़ा है ना, उन उन सबके लिए मतलब मोक्षा के लिए भी हो सकता है, मानवी के लिए भी हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है। तो वो इतना सारा कंटेंट पड़ा है ना बनाने को, वो मतलब कभी टाइम मिला तो बनाऊंगा। अभी तो टाइम नहीं है। तो मीम मार्केटिंग में मतलब ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था जो मेरे माइंड में आया था कि मीम मार्केटिंग में प्लेगरिज्म का कोई इशू होता है क्या, और लाइक अगर होता है तो कैसे डील किया जाए, क्योंकि हम लोग काफी सारे ऐसे मीम टेम्पलेट्स तो देखते ही हैं। तो मीम हम्म, मार्केटिंग में प्लेगरिज्म होता है या नहीं होता है? कि जब आप एक पर्सनल ब्रांड पे, या फिर लेट्स से कि मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है, वहां पे मैं कंटेंट पोस्ट कर रहा हूँ, तो तब तक चलता है, तब तक चलता है। बट जब आप एक ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना मीम्स से, तब नहीं चलता है। I have recently started offering services for meme marketing thing for Kotak Bank. कोटक बैंक के लिए मैंने मीम मार्केटिंग की सर्विसेज ऑफर करनी स्टार्ट की हैं, एंड दे आर लाइक कि यार, जो जैसे आपने मीम्स देखे होंगे उसमें वो कभी भी अक्षय कुमार का कोई हेरा फेरी का डायलॉग ऐड कर देते हम्म। हैं, या फिर वो ऐसा हम्म। कुछ सीन ऐड कर देते हैं, है ना। तो वो कोटक बैंक वाले कह रहे थे कि यार, इस तरह का कंटेंट नहीं हम बना सकते, मतलब इस तरह का कंटेंट हम अपने हैंडल्स पे नहीं पोस्ट कर सकते, क्योंकि अभी लेट्स से कि अभी मैंने उनके लिए एक मीम बना दिया और उसमें अक्षय कुमार को ऐड कर दिया, तो वो हम्म। अक्षय कुमार का जो ऐड हो गया ना उस चीज में, उस मीम में, तो वो एक ब्रांड इमेज बन जाएगी, वो एक कोटक बैंक के लिए ब्रांड इमेज बन जाएगी। कोटक बैंक वाले चाहते हैं कि अगर कोई भी हमें याद करे ना, कोई भी हमें हमारी सर्विसेज, हमारी जो भी सर्विसेज है ना, जिस तरह की सर्विसेज हैं, उनसे हमें याद करे, उनसे हमें रिप्रेजेंट करे, उनसे हमें रिलेट करे। कल को ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार अक्षय कुमार का फेस आया तो उनको लगना चाहिए ये तो कोटक बैंक की बात हो रही है। हम्म। वो चीज नहीं एग्जैक्टली। करना चाहते, तो इस चीज लिए वो ज्यादातर जो ग्राफिकल कंटेंट होते हैं ना, ग्राफिकल मीम्स होते हैं, उन चीजों हम्म। पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो उनके लिए भी मैंने दो मीम्स बनाए हैं, वो मैं शेयर नहीं कर सकता, उस चीज की मेरी मुझे परमिशन नहीं है। तो ये है कि मतलब यार, ब्रांड की या फिर एक कंपनी की अथॉरिटीज पे, मतलब जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उस चीज पे डिपेंड करता है कि हम्म। आप किस तरह का कंटेंट पोस्ट कर सकते हो। कॉपीड कंटेंट तो नहीं ही पोस्ट करना चाहिए यार, क्योंकि मीम मार्केटिंग इज समथिंग रियली क्रिएटिव, और अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन नहीं हो एंड यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी क्रिएटिव, तो आप मीम मार्केटिंग में नहीं सर्वाइव कर पाओगे। मतलब इनिशियली भले ही आप कर दो, इनिशियली भले ही आप किसी को कह दो कि हाँ हम मीम मार्केटर और समथिंग लाइक दैट, बट वो हम्म। आपके कंटेंट से पता चल जाएगा कि यार ये तो पहले भी देखा हुआ है, ये तो इसको वहां से आइडिया आया होगा, या समथिंग लाइक दैट। तो हाँ। बट ऐसे कुछ नहीं है, जैसे कंटेंट राइटिंग के लिए काफी ज्यादा ऐसे सीरियस बात हो जाती है कि प्लेगरिज्म करने पे ये लाइक पीपल स्यू ईच अदर फॉर कॉपिंग द कंटेंट। सी यार, तो अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो है बहुत ही एक ग्राउंड लेवल की। द हम्म। इंस्टाग्राम, मतलब मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है और वहां पे मैं पोस्ट कर रहा हूँ, वो बहुत एक ग्राउंड लेवल है।
और मतलब अगर लेट्स से कि अगर कोई ऐसा ब्रांड है, कोई बड़ा ब्रांड है या फिर कोई बड़ा मीम पेज है जिसके 5-7 मिलियन फॉलोअर्स हैं और उनका मैं मीम कॉपी करके अपने प्रोफाइल पे पोस्ट कर रहा हूँ, उनको तो तब तक नहीं पता लगेगा ना जब तक वो खुद देख ना लें, या फिर राइट। जब तक उनके वो 5 मिलियन फॉलोअर्स में से कोई एक आके कहे कि यार ये तो वहां से कॉपी किया गया है, वो उनको ना बता हम्म। दे। तो मतलब वही चीज है कि अभी तक जैसे हमारे कंटेंट क्रिएशन में प्लेगरिज्म टूल्स है ना, तो मीम मार्केटिंग में अभी तक ऐसा कुछ है नहीं। अभी तक ऐसा कुछ प्लेगराइज कंटेंट वाली चीजें है नहीं, तो वो मतलब बहुत इतना जल्द आ सीरियस जाएंगी। नहीं हुआ है इशू अभी हाँ, तक। हाँ, वो बहुत जल्द आ जाएंगी। एंड आई एम पर्सनली एबल टू नोटिस यार, लोग लोग पता क्या कर रहे हैं, मतलब मेरी मीम कॉपी कर रहे हैं यार। मतलब मैंने ये चीज मतलब मैं इतना कुछ बोलना नहीं चाहता कि वो एक काफी सीरियस चीज हो जाएगी, बट हाँ, आई हैव सीन पीपल कॉपिंग माय मीम्स एंड posting it on from their profiles. तो हाँ, I personally have seen that, but I can do anything. मैं क्या कर सकता हूँ उस चीज के रिगार्डिंग, ज्यादा उस से पे भी ज्यादा। मीम्स बना सकते हैं। हाँ जी, उस पे भी मीम्स बना सकते हैं। उस पे मीम बना सकता हूँ, बड़े आराम से बना सकता हूँ, शायद बनाई भी हो, मुझे पता नहीं। तो द थिंग इज कि यार मतलब बट अभी नहीं कुछ कर सकते, अभी ऐसा कुछ है नहीं। मतलब अगर मैंने उसका पेज देख लिया, वो एक्चुअली तो एक कंटेंट राइटर है ना, वो एक्चुअली तो एक कंटेंट राइटर है, मतलब वो मीम मार्केटर नहीं है, और वो हम्म। एक कंटेंट राइटर है और उसको सर्विसेज चाहिए रिगार्डिंग कंटेंट राइटिंग थिंग। और उसने मेरी मीम कॉपी की और अपने एंड से पेस्ट कर दी अपना नाम वगैरह लगा के। तो अगर मैं उसका अकाउंट रिपोर्ट कर देता हूँ या फिर ब्लॉक करवा भी देता हूँ, तो यार बाद में पता क्या होगा, जो उसको कंटेंट राइटिंग के रिगार्डिंग भी लीड्स आ रही थी ना उसके पेज से, वो भी आनी बंद हो जाएंगी। तो दैट इज समथिंग, आई गेस कि यार वो इतना इतना बुरा तो नहीं बनूंगा मैं किसी के लिए कि उसका लीड्स ही आनी बंद हो जाए या फिर ऐसा कुछ, है ना। तो उस चीज के लिए मैं हम्म। नहीं करता अभी। तो हाँ। ओके, ग्रेट ग्रेट। लाइक काफी इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन था अभी तक का, काफी एंगेजिंग भी था। लाइक काफी लोगों ने बोला भी कमेंट्स में कि काफी एंगेजिंग है। एक लास्ट क्वेश्चन। तो पुष्कर मेहता के अलावा 3 और लोग जिनको फॉलो करना चाहिए मीम मार्केटिंग के लिए। मीम मार्केटिंग के लिए द फर्स्ट फर्स्ट नाम तो है प्रांजल पोदर का, उनको मैं स्पेसिफिकली फॉलो करता हूँ। सेकंड इज उदलक, उदलक राइट। हाँ, हाँ, आई फॉरगॉट। हाँ, उदलक इज देयर। हाँ। और कौन पोस्ट कर रहा है यार मीम्स, और भी बहुत सारे क्रिएटर्स मीम क्रिएट कर रहे हैं, मतलब कंटेंट राइटिंग की फील्ड में। Hmm, और आप राहुल को फॉलो कर सकते हो। राहुल ने ना काफी टाइम पहले एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था, मीम ऑफ द डे। उसमें वो क्या करता था, वो एक मीम बनाता था और उसको एक सीरीज की फॉर्म में पेश मतलब क्रिएट करता था। तो मतलब वो एक काफी अच्छी चीज लगी थी मुझे कि हाँ यार, मतलब ये बंदा अपनी पोस्ट नहीं बढ़ा रहा, बट ये हाइलाइट्स में अपने मीम्स क्रिएट कर रहा है, मतलब एक प्रॉपर सीरीज क्रिएट कर रहा है। वो चीज मुझे काफी अच्छी लगी थी और उसके मीम्स भी काफी रिलेटेबल थे, मतलब हैं। तो हाँ, ये 3 बंदे हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो। लाइक फर्स्टली इज प्रांजल पोदर, सेकंड इज उदलक, एंड थर्ड इज राहुल। तो या Great. Someone asked for the handles. So when I'll publish, like when I'll post this live after this, so I'll mention the handles in the comments. श्योर श्योर श्योर, उनको भी अच्छा लगेगा। Great. Right. या हाँ, उनको बताइए, ऐसे ऐसे एकदम अच्छा खासा प्रमोशन कर रहे हैं वो आप उनके लिए। प्रमोशन, यार प्रमोशन की बात नहीं है। लाइक क्या है यार, क्या है, मतलब क्या ही प्रमोशन मिल जाएगी मेरे एंड से या आपके एंड से, है ना। तो मतलब काफी यार, कुछ मिल। हाँ जी, वर्ड ऑफ माउथ इज द बेस्ट प्रमोशन। नहीं कोई कोई ऐसी बात नहीं, कोई बात नहीं। बट नहीं, काफी नहीं, वो एक्चुअली वो काफी बढ़िया काम कर रहे हैं। मतलब प्रांजल प्रांजल भाई मेरे से तो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। वो वो भी एक कंटेंट क्रिएटर है फॉर एड पैरोडी।
तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हाँ या ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये तो हो गई मीम मार्केटिंग की बात। लाइक इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस तो लाइक यू कमेंट्स में डाल सकते हैं या फिर Q&A सेक्शन में भी डाल सकते हैं। मेरे पास दो क्वेश्चंस आए थे कोरा मार्केटिंग से रिलेटेड, तो लाइक वी आर शिफ्टिंग टॉपिक थोड़ा सा, बट सिंस पुष्कर को एक्सपीरियंस है कोरा मार्केटिंग में भी, so I leave the opportunity, right? So someone has asked that how can you earn from Quora and grow your account? अर्न फ्रॉम कोरा इज वन थिंग यार। कोरा पे ना एक क्रिएटर्स, जैसे हमें लिंक्डइन पे क्रिएटर मोड नहीं मिला, वैसे ही हम्म। कोरा पे भी एक क्रिएटर मोड है। और ओके। जब वो क्रिएटर मोड आ जाता है ना, जब आप एक अच्छी फॉलोइंग क्रिएट कर लेते हो वहां पे, और आपको एक गुड इनफ एंगेजमेंट रेट मिल रहा है फ्रॉम योर फॉलोअर्स, हम्म। देन यू कैन स्टार्ट अर्निंग आउट ऑफ दैट। मतलब वो जो व्यूज वाला सीन नहीं होता, मतलब जो यूट्यूब पे हाँ। व्यूज वाला सीन होता है, द सेम कम्स आउट टू बी देयर कि हाँ यार, मतलब जितने आपके क्वेश्चंस पे व्यूज होंगे और अपवोर्ड्स होंगे और कमेंट्स होंगे, उसके बेसिस पे आपको आप अपने पूरे हैंडल को मोनेटाइज कर सकते हैं। तो दैट इज वन वे। Wow. And the second way that I am personally using, that is by offering Quora marketing services. उससे आप अर्न कर सकते हो, लाइक मतलब कोई भी, लाइक आई एम राइट नाउ आई एम वर्किंग विद टू ब्रांड्स for Quora marketing services. The first is a digital marketing brand, और सेकंड जो ब्रांड है वो है डिजिटल बिजनेस कार्ड का ब्रांड। वो ना, अब मतलब जो हमारे रेगुलर बिजनेस कार्ड्स होते हैं ना, पेपर वाले, हम्म। वो उनको एक डिजिटल फॉर्म में क्रिएट करते हैं। लाइक फ्रॉम जस्ट योर फोन यू वुड बी एबल टू शेयर द थिंग, मतलब अपना बिजनेस कार्ड वगैरह शेयर कर, मतलब एक वर्चुअल बिजनेस कार्ड। तो उन दोनों ब्रांड्स के लिए आई एम डूइंग कोरा मार्केटिंग थिंग, और उनको मतलब काफी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है यार। लाइक दोनों ब्रांड्स को ऑन अ मंथली बेसिस अराउंड 25 से 30 हजार का ट्रैफिक आ रहा है। तो हम्म। काफी अच्छी बात है। मतलब उनको वहां से, मतलब मुझे नहीं पता था कि उनको वहां से लीड्स जनरेट हो पा रही हैं, क्योंकि वो लीड्स वाला मेरे एंड पे है नहीं। मतलब उनको कितनी लीड्स आ रही हैं या फिर कहाँ से लीड्स आ रही हैं, वो मैं नहीं ट्रैक करता। बट हाँ, वो ब्रांड्स खुद कह रहे थे कि वी आर एबल टू जनरेट अराउंड 2 to 4 लीड्स ऑन अ डेली बेसिस थ्रू द कोरा मार्केटिंग थिंग। तो इफ यू आर अ कंटेंट राइटर, अगर आप कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो ना, तो यू कैन गेट ऑन कोरा। वहां पे आप, जैसे यार इंस्टाग्राम पे नहीं हम इंफॉर्मेटिव कंटेंट शेयर करते, तो यू जस्ट नीड टू स्टार्ट पुटिंग आउट इंफॉर्मेटिव कंटेंट देयर, और वहां से आपको लीड्स जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। पीपल विल डायरेक्टली रीच आउट टू यू कि यार आपको जेन्युइनली इंफॉर्मेशन है आपकी सर्विसेज के बारे में, then हम्म। I would, or we would love to work with you. So these are the things that you can try for your services also. ग्रेट। सो एक लास्ट क्वेश्चन कोरा मार्केटिंग के बारे में, एंड उसके बाद समवन हैज अ क्वेश्चन अबाउट मीम मार्केटिंग, सो वील गेट बैक ऑन दैट। तो कोरा मार्केटिंग, लाइक हाउ इज इट स्टिल फ्रूटफुल? लाइक इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, लिंक्डइन है, रेडिट भी है। लाइक रेडिट इज काइंड ऑफ अ कॉम्पिटिटर टू कोरा, बिकॉज दोनों कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म्स है। तो इतने The सारे thing प्लेटफॉर्म्स is, होने के बाद भी वाई कोरा इज या। Quora Quora पे ना, Quora पे जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है ना, that is extremely easy। मतलब क्वोरा एक इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है ना। लाइक अगर आप, पहली बात तो ये कि यार, अगर मान लो मैं एक डिजिटल मार्केटिंग ब्रांड के लिए मैं क्वोरा मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो वेन एवर समवन विल सर्च फॉर दैट पर्टिकुलर ब्रांड ना, उनका ब्रांड नेम डाल के जब भी उनके ब्रांड नेम को सर्च करेंगे, तो यू मस्ट हैव सीन कि यार एक साइड में ना एक क्वेश्चंस वाला कॉर्नर आता है। यू मस्ट हैव सीन वेन एवर, राइट। मतलब वो जो गूगल माई बिजनेस वाला सेक्शन होता है ना, जिसमें हाँ। एक पर्टिकुलर बिजनेस की पूरी डिटेल्स होती हैं, तो एट द एंड यू विल गेट अ क्वेश्चन आंसर सेक्शन। वो डायरेक्टली हम्म। कोरा से लिंक्ड होता है, वो डायरेक्टली कोरा से लिंक्ड होता है।
तो हाँ, ओके। मतलब पहली बात तो ये कि आप अपनी एक अथॉरिटी बना सकते हो इन अ फील्ड। हम्म। मतलब अभी बहुत कम ब्रांड्स हैं हु थिंक्स कि क्वारा मार्केटिंग और पोस्टिंग ऑन क्वारा ऑन अ डेली बेसिस इज फ्रूटफुल। बहुत कम ब्रांड्स हैं, और जो कर रहे हैं ना उनको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। वो एक अथॉरिटी क्रिएट कर पा रहे हैं कि मतलब वी नो सम स्टफ अबाउट द काइंड ऑफ स्टफ वी क्रिएट। तो उस चीज हम्म। से एक बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। लाइक अगर आप एक सर्विस ऑफर कर रहे हो और आपकी सर्विसेज के बारे में किसी ने गूगल पे सर्च किया, और मतलब लेट्स से कि समवन सर्च्ड अमृता मिश्रा ऑन गूगल, और आपका एक कोरा अकाउंट है जहां पे आप कंटेंट राइटिंग सर्विसेज के बारे में लोगों को हेल्प आउट कर रहे हो आंसर से, क्वेश्चन आंसर से। हम्म। तो एक साइड में क्वोरा का आपका क्वोरा का सेक्शन बन जाएगा जहां पे आपके जितने भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना, वो सारी चीजें शो कर देंगे। फिर उस टाइम पे पता क्या है, उस टाइम पे बंदा ना, जो क्लाइंट होता है, वो क्वेश्चंस देख के अगर आपने अच्छी तरह से आंसर किए हैं, इंफॉर्मेटिव वे में आंसर किए हैं, तो वो बस आंसर ही देखेगा, उसके बाद आपका पोर्टफोलियो नहीं मंगाएगा। वाह। तो लाइक मतलब इट्स लाइक आप दूसरों का हेल्प करो, आपकी हेल्प हो जाएगी। हाँ। काइंड ऑफ। या कोरा बहुत ओके। अच्छा तो प्लेटफॉर्म है यार। मतलब इनिशियली आई नेवर थॉट कि यार कोरा, मतलब यार मैंने कोरा बहुत रैंडमली स्टार्ट किया था, बहुत रैंडमली। तो इनिशियली आई हैव नेवर थॉट कि यार मैं उस ब्रांड को कोरा से रिजल्ट्स दे भी पाऊंगा कि नहीं। बट वही ना, वो कंसिस्टेंसी इज अ की वाला थिंग, कि आप ऑन अ डेली बेसिस आप कंसिस्टेंट रहो उस चीज से, एंड डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट्स। और उनको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। लाइक अराउंड 6 months आई एम ऑफरिंग द कोरा मार्केटिंग सर्विसेज फॉर दीज टू ब्रांड्स, एंड वो शायद तभी इस सर्विस को कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि शायद उन्हें रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो या ग्रेट। लाइक अगर वो कह रहे कि उनको 2 to 4 लीड्स मिल रही हैं कोरा से, तो आई थिंक वो काफी अच्छी चीज है। ऑन अ डेली बेसिस अगर 2 to 4 लीड्स, तब तो काफी अच्छा ही है। ग्रेट। ग्रेट। सो ओके, ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लाइक मीम मार्केटिंग के लिए फ्रीक्वेंसी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? मतलब कितनी लाइक पोस्ट। हाउ फ्रीक्वेंटली, हाँ कितनी पोस्ट, कितने दिनों में पोस्ट, वैसा। सी द थिंग इज यार, मीम्स का अभी यार प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करता है, ये पहली बात तो ये। लाइक हम्म। एक एक मीम मैंने अभी पोस्ट किया, जो लेटेस्ट वाली मेरी पोस्ट है ना, वो एक मीम ही है। तो वो मैंने पोस्ट किया है। अभी क्या है, इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम ऐसी है कि वो मीम मैंने पोस्ट की हुई है, वो बहुत अच्छी चल रही है। मतलब इसको, मतलब अगर मैं 2 दिनों तक कुछ भी पोस्ट नहीं करूंगा ना, तो इसकी इस पर्टिकुलर मीम की रीच बढ़ती जाएगी। बढ़ रही है, अभी भी बढ़ रही है, और ये बढ़ती जाएगी। मतलब अगर 2 दिनों तक मैं कुछ पोस्ट नहीं करूंगा अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे। हम्म। बट द थिंग इज कि अगर कल को या फिर अभी मैं इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट कर देता हूँ ना, मतलब लेट्स से कि पहले मैंने मीम पोस्ट की, वो बहुत अच्छी चल रही है, उस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और अभी मैंने एक कोई भी अदर पोस्ट पोस्ट कर दी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, तो वो जो मेरी मीम मीम वाली पोस्ट की रीच है ना, वो वहीं पे स्टक हो जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो दैट इज द थिंग। मतलब ये प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म डिपेंड करता है कि कितने कितने कितना फ्रीक्वेंटली यू नीड टू पोस्ट समथिंग ऑन 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 व्हाटसोएवर प्लेटफॉर्म यू आर। ये चीज सिर्फ और सिर्फ मीम्स के लिए नहीं है, ये हर तरह की पोस्ट के लिए है। मतलब इफ अ पोस्ट इज डूइंग वेल ऑन वेल ऑन लिंक्डइन, तो और वो काफी अच्छा ग्रो कर रही है हफ्ते से, मतलब उसका उसकी रीच बढ़ ही रही है। और उसके बाद अगर मैं कोई पोस्ट क्रिएट कर दूंगा ना वहां पे लिंक्डइन पे, तो वो जो पिछली पोस्ट की रीच है ना, वो डिसरप्ट हो जाएगी, वो ग्रो नहीं कर पाएगी। तो ये एल्गोरिदम है, मतलब इसको ये ऐसी वर्क करती है। अभी क्या कर सकते हैं, मतलब लिंक्डइन तो जो लेटेस्ट कंटेंट है, या फिर इंस्टाग्राम है, वो तो लेटेस्ट कंटेंट को ही प्रेफरेंस देगा ना,
rather than your previous content or older content. तो ये चीज है. But if you want to grow in the field of memes, then I'll suggest you कि you should at least post one meme on daily basis. मतलब within 24 hours. मतलब 24 hours का gap रखो हर पोस्ट में. 24 आवर गैप इज मस्ट. मतलब इतना 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 गैप तो आपको बनाना ही पड़ेगा. अगर आप कुछ भी ऐसे कर रहे हो ना कि मैं ज्यादा मीम्स पोस्ट कर दूंगा, मेरी रीच ज्यादा होगी, तो वैसा कुछ नहीं होता. इंस्टाग्राम एक एल्गोरिदम है, स्ट्रैटेजी से वर्क करना पड़ता है. ऐसे ही आप अब्रप्टली कुछ भी पोस्ट करना स्टार्ट कर दोगे ना कि आज अभी मैं 10 पोस्ट क्रिएट कर दूंगा या फिर इतनी पोस्ट क्रिएट कर दूंगा, तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू. ग्रेट, ऑसम. मुझे काफी कुछ पता चला आज मीम मार्केटिंग के बारे में जो मेरे को पहले नहीं पता था. नहीं, काफी सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस भी मेरे क्लियर हुए. थैंक यू सो मच पुष्कर. हाँ, मतलब लाइक मेरे को मेरे माइंड में काफी सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने आज लाइक पूछे, तो वो सारे काइंड ऑफ ऐसे प्री नोशंस होते हैं कि एक ऐसे फिक्स्ड आइडिया हो जाता है मीम मार्केटिंग के बारे में. तो वो सारे भी काफी कुछ आज क्लियर हो गए. तो थैंक यू सो मच पुष्कर. लाइक सेशन खत्म होने से पहले इफ यू हैव एनी फाइनल टिप फॉर एनीवन हु वांट्स टू स्टार्ट और हु इज इन देयर करियर इन मीम मार्केटिंग. टिप नहीं है, एक जस्ट वन थिंग है टू टॉक अबाउट. मीम्स आर नॉट अनप्रोफेशनल. बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं. Memes are not unprofessional. Like yeah, there are a number of people out there जो believe करते हैं कि memes are unprofessional. और जब वो ऐसी चीजें बोलते हैं ना, कभी कभी तो चलो कह देते हैं कि चलो कोई नहीं यार, देखा जाएगा, कोई बात नहीं, बोलने दो. बट कभी कभी आप कुछ और चीजों से फ्रस्ट्रेटेड होते हो और फिर ऐसा कुछ हो जाए, तो उस टाइम पे इतना बुरा लगता है ना कि यार ये क्या है. इस पे मीम बनाऊंगा मैं पहले. किया हुआ है आपने, एकदम पूरा एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं. बहुत 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 किया हुआ है, बहुत. मतलब किन किन लोगों पे मैंने मीम्स बनाई है ना, ये उनको भी नहीं पता. It was great to have you. Thank you so much for your time and इतने सारे questions answer करने के लिए. We are already over 1 hour. I am glad to be here. Like मुझे नहीं पता कि मुझे लोग किस बेसिस पे एक प्रोफेशनल कहते हैं. Like I personally don't consider myself as a professional in any field. In any field. मतलब पता नहीं, मतलब ये लोग क्यों कहते हैं कि यार ये बड़ा एक्सपर्ट बंदा है और समथिंग लाइक दैट. But great. I enjoyed this session a lot. Thank you so much. Cool. Thank you so much for having me. Thank you so much. So I'll end this session now. Yeah, sure. Okay. Have a great day ahead, Pushkar. Bye. Bye everyone. Bye. Thank you everyone for joining. See you next time. Yeah. Thank you so much.